بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 16ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، ہم سبق پڑھ رہے تھے 10 تک اور اس کا فرسٹ ہاف ہم پڑھ چکے، سیکنڈ ہاف پیج نمبر 42 سے۔ پھر اس لیکچر کا ربط پچھلے سبق سے یا سبق کے پچھلے حصے سے بنانے کے لیے دوبارہ ان چیزوں کو میں دہرا دیتا ہوں۔ سبق کا عنوان 10 تک، مصنف کا نام میرزا ادیب، اور صنف کے اعتبار سے یہ سبق ہے ڈرامہ۔ جس کتاب میں سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے پس پردہ۔ عزیز طلباء، ڈرامہ نویس اس لیے ڈرامہ لکھنا چاہتا تھا تاکہ ڈاکٹر حضرات کو یا طبیب اور مسیحائی کرنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے سکے کہ تم یہ عبادت والا کام کر رہے ہو اگر فرض شناسی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے رہے ہو، اور اگر اپنی ذمہ داری کو بھول کر اس پیشے کو اپنا رہے ہیں آپ تو پھر کسائیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک ڈاکٹر کا حال بتایا کہ ایک دن اس نے کوتاہی کی، مریض کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، تو اس واقعے نے یا اس قصے نے اسے سکون نہ لینے دیا، اور 18 سال بعد بھی وہ تڑپ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ وہ مریض میرے پاس آیا تھا یا ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا تھا، اپنا مریض بیٹا مجھے دکھانا چاہتا تھا، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، یہ وہم اس کے لیے بیماری بن کر رہ گیا، مرض بن کر رہ گیا۔ عزیز طلباء، تو اس بڑے میاں کا جو پوتا تھا ڈاکٹر برہان، جس کا ذکر آگے آئے گا، پیج نمبر 42 سے سیکنڈ ہاف کا آغاز کرتے ہیں۔ برہان آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا، یعنی 2 مریض ایسے آ گئے کہ انہی میں الجھ کر رہ گیا، اور مجھے فراغت ہی نہیں ملی کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آتا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ تو بیٹا اسے آپ انڈر لائن کر لیں گے کہ ڈاکٹر برہان نے بیگ کس جگہ پر رکھا؟ چھوٹی میز پر۔ اور ڈاکٹر برہان کہتے ہیں کہیے ٹمپریچر لیا؟ ٹمپریچر لینا درجہ حرارت چیک کرنا، یعنی مریض کی حدت چیک کرنی تھرمامیٹر کے ذریعے۔ بیگم تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ ویسے نارمل آدمی کا ٹمپریچر 98 ڈگری ہوتا ہے، اور کہا کہ 2 درجے آگے ہے، 100 ہے، یعنی بخار ہے۔ برہان سینے میں تو درد نہیں، زیادہ نہیں، برہان شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم گھبراہٹ سی ہے، یعنی بیگم بتاتی ہیں کہ یہ پریشان ہیں۔ برہان کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے، یعنی آج انجیکشن کی چھٹی کر دی جائے، آج انجیکشن نہ لگایا جائے، زیدی یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ بائیں دروازے کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ معروضی میں پوچھا جائے گا کہ بیگم جب چائے لینے گئیں تو کس دروازے سے گئیں؟ دائیں سے، بائیں سے؟ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان سیرپ ختم ہو گیا ہے، یعنی شربت ختم ہو گئی ہے، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ زیدی تو آپ چلے، یعنی آپ جا رہے ہیں؟ برہان جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے ڈاکٹر صاحب۔ برہان جی۔ بیگم ذرا ٹھہریے، یعنی ذرا رکیے۔ برہان مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم بس 1-2 منٹ چائے لا رہی ہوں۔ برہان اوہو آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں۔ بیگم آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجئے، برساتی بارش سے بچنے کے لیے پہننے والا کوٹ۔
बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है मारूजी के लिए कि डॉक्टर बुरहान बरसाती उतार कर कहाँ रखता है, मेज पर रखता है, खौंटी पर लटकाता है, कुर्सी के बाजू पर फैला देता है। बेगम चली जाती हैं। जैदी बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान और तो कोई तकलीफ नहीं, बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियां लेकर आती हैं, यानी थाली के अंदर, बर्तन रखने वाली कश्ती के अंदर 3 प्यालियां लेकर आती हैं। तो इसको भी मारूजी के लिए आपने अंडरलाइन करना है। 3 कैरेक्टर हैं और 3 चाय के कप वो लेकर आती हैं। बेगम मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं, वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शौहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज के साथ लगा देती हैं। बुरहान घूंट लेकर आप क्या बता रही थी? बेगम डॉक्टर साहब ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, यानी जो बात मैं बता रही हूँ अजीब लगती है, अनोखी लगती है। शायद आप इस पर यकीन ना करेंगे, यानी आपको एतमाद नहीं आएगा, मगर शौहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए शौहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ हैं, मशगूल हैं। बुरहान फरमाइए तो। बेगम इन्हें एक वहम हो गया है, यानी इनके दिलो दिमाग में एक खाम खा का ख्याल बैठ गया है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बार बार दरवाजे पर दस्तक सुन रहे हैं, हालांकि दरवाजे पर दस्तक है ही नहीं। बुरहान वहम। बेगम मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? बुरहान जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत यानी इंसानी नफ्सियात बड़ी पुरअसरार होती है, राजों भरी होती है, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। यानी जैसे किसी आम इंसान को ये बीमारियां, ये अमराज लाहक हो सकते हैं, उन्हीं अमराज के अंदर एक डॉक्टर भी मुब्तला हो सकता है। बेगम एक बार फिर शौहर को देखती हैं, वो बादस्तूर यानी पहले की तरह चाय पीने में मसरूफ हैं। बेगम चाय पीजिए ना, बुरहान बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती हैं। बेगम पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, यानी कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, दरवाज़ा बजा रहा है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। बुरहान हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। बेगम दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? बुरहान यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम जी हाँ, और यही बात बेगम जैदी डॉक्टर बुरहान को बताना चाहती थी कि इन्हें खामखा का ये ख्याल हो गया है कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, हालांकि दरवाजे पर दस्तक सिरे से होती ही नहीं। और कई दफा बेगम जैदी कहती हैं कि ये मुझे दरवाजे पर भेज चुके हैं। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। बुरहान नींद आ रही है डॉक्टर साहब। जैदी आंखें खोले बगैर जी नहीं। बेगम आज उन्हें बार बार यही ख्याल आता है बेगम आज उन्हें बार बार यही ख्याल आता है। मैंने कहा भी कि बाहर तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से ये शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मर्तबा मुझे दरवाजे पर भेजा है जैदी और वहां कोई नहीं था। बेगम कोई भी नहीं। जैदी अच्छा, बेगम आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। जैदी, बुरहान बेटा, बुरहान कहिए। जैदी ये आज से 18-20 बरस पहले का वाकया है, यानी ये बात 18-20 साल पहले की है
उस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, यानी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा करता था। डिस्पेंसरी, क्लिनिक और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था, यानी बहुत ज़्यादा रश, हजूम। एक रात मैं देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही है। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं, यानी बड़ी उम्र का बुजुर्ग आदमी आया है और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया, मैंने मना कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर उसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा, बड़ी उम्र का आदमी, बुजुर्ग मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा, यानी आहुजारी करने लगा, गिरियाउजारी करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, यानी सेहत मिली थी, चल कर देख लें। मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। जैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते हैं, गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था, यानी सर्दियों का मौसम था और गर्म बिस्तर में छोड़ना ही नहीं चाहता था, वहाँ मुझे आराम और सुकून मिल रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक दस्तक देता रहा, मैं सो गया। जैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शौहर पर जमी हैं, क्योंकि ये किस्सा, ये वाक़या डॉक्टर जैदी ने पहले कभी बेगम को बताया नहीं था। और बुरहान मेज से दवाई की एक शीशी उठाकर उसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था, यानी मैं परेशान था, अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया, यानी वो बुजुर्ग आदमी था, मेरे पास आया था, मैंने मसीहाई करनी थी, मैंने उसके साथ जाना था, मैंने क्यों उसे नाउम्मीद किया। बुरहान, उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था, यानी आपके लाशऊर में ये बात बैठ गई थी कि आपने गलत काम किया है। जैदी बस यही बात थी। मैंने उस बूढ़े को ढूंढने की, यानी तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं पता न चला, न जाने वो कौन था। बुरहान, वो बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर, यानी आपके अंदर की आवाज़, लाशऊर की आवाज़ दरवाजे पर दस्तक देती है। बुरहान बोतल मेज पर रख देता है। ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब, जैदी, कहो बेटा। बुरहान, इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए, यानी इस वाक़े में एक बात और भी शामिल कर लीजिए। मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ, यानी वो बड़ी उम्र का बुजुर्ग आदमी जो आपके पास आया था और जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था या बड़ी तकलीफ से मर रहा था। मैं उसी का बेटा हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। जैदी, तुम? बेगम, बुरहान बेटा, बुरहान, अच्छा, खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए। यानी जिस बात को लेकर आप परेशान हैं, अब उस बात से मुताल्लिक मैंने आपको आगाही दे दी, अब वो राज आप जान चुके, अब आपको परेशान नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आराम कीजिए, शब बखैर, यानी आराम से रात गुजारिए, कल हाजिर हूँगा। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बीवी खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है, यानी वो पर्दे के पीछे जाता है और वो असल बात वाज़े कर जाता है कि एक डॉक्टर को फर्ज शनास होना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अच्छे तरीके पर निभाना चाहिए। जी तलबा, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह।